نگار اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر، اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ جانتے ہیں پیر ہے، اور پیر کے روز ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آج شام تک میں میرے ساتھی میزبان ہیں آغا سید علی موسوی، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ جی السلام علیکم موسوی بھائی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ فاروق بھائی، خیریت سے ہیں تمام موسوی ناظرین بھائی؟ اور الحمدللہ الحمدللہ اور تمام ناظرین اور ناظرات کی خدمت پہ بھی مرتبہ سلام عرض کرتا جزاک اللہ۔ تو ناظرین، منڈے کا حسب معمول ہمارا جو فارمیٹ ہے آپ جانتے ہیں، کچھ بین الاقوامی خبریں، ایشوز آغا سید علی موسوی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کچھ ایشوز خاص طور پر پاکستان سے متعلق وہ میرے پاس بھی ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور آج آپ کی کالز یقیناً ہم کھولیں گے۔ لاسٹ منڈے کو ہم پروگرام اس انداز سے جو اپنے سیگمنٹ تھے نہیں کیے تھے، کیونکہ ہمارے خاص پروگرام تھا جناب نظامی صاحب کی یاد میں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ایشوز پر جانے سے پہلے بتا دوں کہ آج بھی کرونا وبا کی وجہ سے یو کے میں 230 اموات ہوئی ہیں جو آج تک بتائی جا رہی ہیں، اور بہت افسوسناک صورتحال، لیکن ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا کام بھی کافی تیزی سے جاری ہے۔ تو موسی بھائی، جیسے کرونا کے حوالے سے مختلف متس تھیں، یا یہ جسے کہتے ہیں نا کہ جھوٹی ایک خبریں تھی جی کرونا ہے ہی نہیں، اب تو تقریباً 2.5 ملین افراد اس میں وفات پا چکے ہیں۔ اسی طرح ابھی ویکسینیشن سے متعلق بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں جی یہ نہیں لگوانی چاہیے، اور خاص طور پہ ایشین کمیونٹی ہوں۔ ہماری جو ہے۔ اس میں جی اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، جب انسان خدا کو جھٹلا سکتا ہے تو وہ کسی کو بھی جھٹلا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، یہ تو تو ہے۔ کرونا تو دکھ بھی نہیں رہا ہے۔ مطلب بعض لوگ ہم، ہوتے ہیں حقیقت کا انکار کرنا ان کی عادت ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اس پہ۔ جی ہاں، لیکن وہی نا کہ ہمیں ان میں شامل نہیں ہونا چاہیے جو بھی باشعور لوگ ہیں، ایگزیکٹلی۔ یا چلیں 1 ہفتہ لگا، 2 ہفتے لگے، 3 ہفتے لگے، 3 مہینے لگ گئے، اب تو سال سوا سال ہو گیا اس وبا کو، اور کوئی اس میں امیر غریب چھوٹا بڑا گورا کالا یہ سب اس میں کوئی تفریق ہی نہیں تھی۔ تو اب اس میں ضرور ہمیں یقین آ جانا چاہیے۔ اور پھر اب ویکسین سے متعلق بھی جو مختلف غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جی، اس سے آپ سدا کے لیے بیمار ہو جائیں گے یا فلاں کمزوری آپ میں ہو جائے گی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کے شامل ہونا چاہیے، اور جیسے جس کا نمبر آئے اس میں ضرور آگے بڑھیں، کیونکہ جان لگوا کر بچانا بھی یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ زندگی ہی ہے۔ تو زندگی اپنی اور دوسروں کی ہم محفوظ بنانے کے لیے تھوڑا ضرور سیریس ہوں۔ تو موسی بھائی سے آغاز کریں گے کچھ انٹرنیشنل نیشنل خبریں، تو آغا سید علی موسی۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔ اس سے قبل کہ ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل خبروں کا آغاز کریں، تھوڑی سی اس کے اوپر اور بات کر لیں۔ ویکسین کے حوالے سے آپ نے بہت عمدہ بات کی۔ دیکھیں، اگر جی ہمیں یاد ہو تو سب سے پہلے مرجعیت کی طرف سے جو حکم آیا تھا ہمارے یہاں، وہ بھی یہی آیا تھا کہ جو اطباء کہہ رہے ہیں، جو طبیب کہہ رہے ہیں، جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، ان کو فالو کیا جائے۔ تو جی اس ہاں میں نہ انہوں نے سیدھا ریفر اسی کو کیا جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے، اس کی ہی ایکسپرٹیز اس میں ہوتی ہے، وہ کہا کہ آپ ڈاکٹرز کو فالو کریں۔ اب جب جی ہاں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ لگوانی ہے اور کرونا سے احتیاط کرنی ہے، اس کے یہ ایس او پیز ہیں، یہ سارا معاملہ ہے، اس طرح سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، تو پھر ایک طرف یہ دعویٰ بھی ہم کریں کہ ہم مرجعیت کو فالو کرتے ہیں، ہم ایک سسٹم میں چلنے والے لوگ ہیں، ہم جو ہے کہ ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، ایک طرف تو یہ دعویٰ بھی ہو ہمارا، اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ اس طرح کی آوازوں کے پیچھے لبیک کہیں کہ جی کوئی چیز نہیں ہے، اور ویکسین کے اوپر اشکالات ہوں، یہ سب ہو، تو یہ دو باتیں ہو جائیں گی جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ تو ان لوگوں کو باریک بینی کے ساتھ ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کی مذہبی قیادت بھی کیا کہہ رہی ہے، آپ کی عقل بھی کیا کہہ رہی ہے، اور کیونکہ انسان کے اوپر پہلی حجت تو اس کی عقل ہے، اور وہ صحیح انسان کو صحیح گائیڈ کرتی ہے اگر تھوڑا سا انسان اس کے اندر غور کرے۔ تو ناظرین، اسی بالکل۔ کے ساتھ جو ہے ہم شروع کریں گے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور انٹرنیشنل جو تھوڑی بہت نیوز ہیں اس میں سے ہم نے بہت کم کر کے اور جو خاص ہیں وہ آپ کی خدمت میں دے رہے ہیں، ورنہ اتنا تیزی کے ساتھ سلسلہ ہے انٹرنیشنل نیوز کے اندر، ہر لمحے جو ہے وہ صورتحال کچھ نہ کچھ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایک پوری فہرست آپ کی خدمت میں پیش کریں تو سیگمنٹ ہی ہوتا چلا جائے گا، تو اس میں کچھ سلیکٹڈ جو ہے وہ خاص خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یمن سے سعودی عرب کی جو ہے وہ آبرو مندانہ
वापसी की जो है वो तैयारियां हो रही हैं, इस पर पूरा खेल खेला जा रहा है। थोड़ी सी डिटेल न्यूज आपकी खिदमत में बयान की जाएगी। असाब कहफ नामी जो तंजीम है इराक के अंदर, हशद अशावी जो एक रजाकार फोर्सेस है इराक की, जिन्होंने इराक की अर्जी सलामती को यकीनी बनाया, जो कि समात आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के जेर असर जो वजूद पाई थी, तश्कील पाई थी। तो उन्होंने उसकी एक शाख है असाबुल कैफ, उन्होंने मूसल के अंदर तुर्की ने कुछ इलाके पे इराक पे कब्जा किया जारियाना तौर पर, तो उसके ऊपर उन्होंने मिसाइल हमला किया है और तुर्क काबिज फौज के जो है वो एक बंकर को और उनके काफी जो है वहां पर फौज को नुकसान पहुंचाया, ये इत्तला आ रही है। इसके बाद ईरान का कहना है कि अगर जौहरी मुआहिदे के शुरका ने अहद पैमा पर अमल दरामद न किया तो इजाफी जो प्रोटोकॉल है उसको भी रोक दिया जाएगा। और इसराइल ने एक मरतबा फिर जारियत करते हुए दमिश्क के ऊपर मिसाइल हमला किया, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम ने शाम के नाकाम बना दिया और वहां पर हाई अलर्ट की सिचुएशन है। थोड़ी सी डिटेल न्यूज देख लेते हैं और तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो सऊदिया से यमन से जो सऊदिया के निकलने का मामला है, उसमें कहा यह जा रहा है कि जो मालूम होता है कि इन दिनों सऊदी अरब की दलदल से आबरूमंदाना इनखला की तैयारियां जो है वो की जा रही है। इलाके में इसके इत्तेहादियों को भी फिक्र लाक है। अमेरिका ने भी सऊदी अरब और अमारात पर मजीद असले की फरहमी को रोकने के ऐलान करके आने वाले वक्त में अपने दोस्तों को बचाने ही की एक तदबीर जो वो किए, ना कि उनके खिलाफ कोई गए हैं, बल्कि एक तरह से ये दिखाया है कि असला रोक दिया है तो मजीद जंग नहीं हो सकती, ताकि यमन के खिलाफ जो अमरीकी सरपरस्ती में 6 साल से मसरूफ जंग थे, वो जो है वहां से इज्जत के साथ वापस निकल सके, क्योंकि उनको वहां पर 1 इंच भी कामयाबी जो है वो नसीब नहीं हुई है। इराक में जो असाबुल कहफ नामी तंजीम ने जो ऐलान किया कि इसने मुल्क की सरजमीन पर गैर कानूनी तौर पर मौजूद तुर्क फौज के एक बड़े अड्डे को मिसाइली हमले से निशाना बनाया, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक वहां पर खबर ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, गर्म हो रही है, और इराकी जो टीवी चैनल्स हैं इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इराकी शहर मूसल में मिसाइल फायर की जाने की आवाज के बारे में इत्तला जो है वो दी गई और एनी शाइज मौजूद है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इसकी बाकायदा वीडियो भी जो है वो रिलीज कर दी जाएगी। ईरान का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान सईद अल खतबज़ादे ने खबरनिगारों के साथ हफ्तेवार जो उनकी वीकली ब्रीफिंग होती है उसमें उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर बदलते हुए हालात और खारजा ताल्लुकात की जो गुफ्तगू की है। सईद खतबज़ादे ने यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे मार्टिन रीफ के दौरे तेहरान की जानिब इशारा करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि यमनी मसले पर खित्ते के अजीम गमों में से एक है और इसके सियासी हल पर दूररस नताइज जो है वो बरामद होंगे। और उन्होंने साथ में ये कहा कि जौहरी मुआहिदा जो JCPOA के शुरका की जानिब से अपने अहद पैमा पर अमल न किए जाने की सूरत में ईरानी हुकूमत की जिम्मेदारी के वो पार्लिमानी करारदाद के मुताबिक इजाफी प्रोटोकॉल पर जारी अमल दरामद को रोक दे, जबकि इस काम के लिए ज्यादा वक्त भी दरकार नहीं और मुइना वक्त पर इसे फौरन जो है वो रोक दिया जाएगा। जहां तक शाम की बात है तो शामी मीडिया के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइली हमले को नाकाम बनाया इसराइल के, और इसराइली हमलों के पेश नजर फिजाई दिफाई निजाम को मुतरक कर दिया कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कोई और हमला होता है तो उसको भी नाकारा बनाया जाए। तो ये तो थी बहुत खास खास अहम खबरें उम्मत मुस्लिमा के हवाले से अगर इंटरनेशनल कैनवस पे देखा जाए, वरना इसके अलावा बेशुमार खबरें जो है वो और है। तो बाकी जो डोमेस्टिक खबरें हैं पाकिस्तान की और उसके गिरदनवा की, वो सुनते हैं फारूक नगर भाई से। बिस्मिल्लाह फारूक। सही है भाई, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, डोमेस्टिक खबरें यकीनन कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। जब भी पाकिस्तान पर खास तौर पे जब हम बाहर की दुनिया आए हैं तो फिर पता चला कि उस कुएं में क्या हाल था, क्योंकि जब तक हम कुएं के मेंढक होंगे तो उस वक्त पता नहीं चलता कि बाहर की क्या दुनिया है, लेकिन बाहर आके पता चलता है कि ये जमहूरियत किसको कहते हैं, अखलाक किसको कहते हैं, इंसाफ किसको कहते हैं, या पार्लियामेंट किसको कहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे यहाँ नाम की तो हैं, लेकिन सही मानों में उसका जो इतलाक है वो हम बाहर की किसी भी मुल्क में अब तो खैर बहुत से ममालिक हमारे इर्द गिर्द जो है करप्शन के मामले में अफगानिस्तान हमसे बेहतर है, बांग्लादेश की तरक्की जो है वो आगे चल रही है। इंडियन रुपया जो हम दोनों ममालिक इकट्ठे ही आजाद हुए थे और हर इशू पर हर मैदान में हम इंडिया के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, तो सिवाय क्रिकेट या हॉकी में मुकाबले के अलावा हमें जो दीगर इश्यूज हैं या दीगर जो फील्ड्स हैं उसमें हम मुकाबला नहीं कर पाए। वहां पर जो शफाफ इलेक्शन होते हैं वो हम सही मानों में अपने मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। ये ऐसी बात नहीं है कि हम
उससे जब एटमी ताकत बन सकता है, एक मुल्क जो है एटम बम बना सकता है, तो अगर करने पे आए या नीयत ठीक हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो शफाफ इलेक्शन एक ऐसा बड़ा एक मुअम्मा बना दिया गया है कि अब हमें बहुत मुश्किल लगती है कि अब, और बल्कि सियासतदानों को भी पता होता है कि बजाय कि आवाम के सामने धक्के खाने के या उनके वादे पूरे करने के, किसी की गुड बुक्स में आ जाओ और फिर उनके साथ अलेग सलेग अगर आपकी अच्छी हो गई तो फिर आपके इलेक्शन पक्के हैं। और यही सिलसिला जो है वो पिछली साबका हुकूमतों में हम देख चुके हैं। तो अब दोबारा एक तो वजीराबाद में एक जिमनी इलेक्शन है, PP 51 पंजाब की सूबाई असम्बली का, तो वहां पर कुछ सियासतदानों की आमद का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज साहिबा भी आज वहां पे थी और उनका कहना था कि मुल्क का नुकसान जरूर हुआ है लेकिन नवाज शरीफ आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये अब इस पे तबसरा अब क्या किया जा सकता है कि मरियम साहिबा जो है वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ आएगा और वो ठीक कर देगा। तो ये मौका जो मिल रहा है, यकीनन ये जुमला साल डेढ़ साल पहले तो बिल्कुल ही गैर मुतवक्किल था, या ऐसी कोई शायद ही मरियम साहिबा खुद भी जुर्रत कर सकती कि ये बात कह पाती कि नवाज शरीफ आएगा। लेकिन ये जुमला उनकी जबान तक जो आया है उसकी सबसे बड़ी वजह इस वक्त मौजूदा जो PTI की गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस है। बुजदार साहब की परफॉर्मेंस है, इमरान खान के जो वादे तसल्लियां और जो ऐलानात, उसके ऊपर यू टर्न और उसके ऊपर अजीबो गरीब वजाहतें, ये उसकी वजह से मरियम साहिबा कह रही हैं कि हाँ नवाज शरीफ आएगा और वो मुल्क ठीक करेगा। हालांकि वो 3 बार आ चुके, इससे अगर मुल्क ठीक करने के लिए उनके पास कोई ऐसा सुरखाब के पर होते तो वो ठीक कर चुके होते। और सारी अवाम जब वो निकले थे कि मुझे क्यों निकाला, तो फिर तो पंजाब सारा कम से कम बंद हो जाना चाहिए था। चंद सड़क के ऊपर कुछ लोगों को बुलाया गया और उनको इस कैंपेन में बहुत बड़ा हीरो, बल्कि वो खुद नाकाम हुए। और बहुत से लोगों को जो उनको ये मशवरा दे रहे थे कि आपको GP रोड से ही चले जाना चाहिए या आप एक फ्लाइट पकड़े इस्लामाबाद से लाहौर आराम से जाते उमरा, लेकिन मुझे क्यों निकाला में अवाम ने उनका कोई साथ नहीं दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कुव्वतें दोबारा अपने पैर जमा रही हैं। जिस इन कुव्वतों को हम PDM कह सकते हैं, मौलाना फजल रहमान हो, आसिफ अली जरदारी हो, नून लीग हो या दीगर और कुछ जमातें हैं जिनका सिर्फ काम तकरीर है। शेरपाव साहब हैं, अचकजई साहब हैं, नूरानी साहब हैं, वो चेहरे ऐसे हैं जैसे एक फिल्म में कुछ मेहमान अदाकार होते हैं कि जिनका काम होता है कि फाइट के दौरान वो नजर आते हैं, बल्कि जो अहम किरदार हैं वो अलग ही होते हैं। तो कुछ इस किस्म के किरदार हैं इस PDM में भी कि वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना कि तस्वीरें उसकी जीनत बनते हैं। तो मकसद यही है कि जो मरियम साहिबा या दीगर जमातें आहिस्ता आहिस्ता जगह ले रही हैं और ये उनका हक बनता है। यकीनन एक बहुत बड़ा खला था जिसको अवाम ने उसके ऑपोजिट चल के PTI को वोट दिए थे 2 ढाई साल पहले। तो अब अगर अवाम उनसे कोई उनको कोई अच्छे की उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो आ जाके फिर वो उसी खजूर में ही अटकेंगे जहां से वो पहले से निकले थे। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। एज ए पाकिस्तानी में बात कर रहा हूं कि अगर इस मौजूदा हुकूमत को अवाम जो है वो बिल्कुल नाउमीद हो जाती है तो फिर एक नई जनरेशन से वास्ता पड़ जाता है। अब उनके वालदैन तो माशाल्लाह वो अपना अपना अनिंग खेल के अच्छी अच्छी सेंचुरियां बना के स्कोर करके वो तो अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में बैठे हैं। उनके पोते पोतियां नवासे नवासियां आगे जनरेशन की जनरेशन माशाल्लाह वो अब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खाते पीते घराने से उनका ताल्लुक है। तो अगर तो यह हुकूमत अगर नाकाम होती है तो इसमें अब दोबारा नई जनरेशन से वास्ता पड़ेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से वास्ता पड़ेगा, मरियम साहिबा या उनके अपने कुछ जो अगर बेटे हैं उनसे वास्ता पड़ेगा। तो ये सारी जो अगर वास्ता अवाम अगर उनके हाथ में दोबारा चढ़ती है तो ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान या अगर हम कहें कि उनको लाने वालों के ऊपर है, तो ये गलत नहीं होगा। अब वजीराबाद के इलेक्शन के ऊपर ये सारा शोर है और सराजुल हक जो जमात इस्लामी के अमीर हैं उन्होंने भी वहां पे जलसा किया और कहा कि करप्शन और मरूसियत का खात्मा करेंगे। तो जमात इस्लामी भी बज़ाहिर PDM में नहीं है, ना ही इत्तेहादी जमात है PTI की। तो वो एक अलग से एक कोशिश कर रही है। हम काजी हुसैन अहमद साहब के जमाने से देख रहे हैं कि लोगों काजी आ रहा है और इनके हाथ में
अल्लाह की किताब है और ये सारा कुछ, वो इस्लाम लाने वाले इस किस्म के धड़े वो अपने ही राग लाप रहे हैं, उनका एक अलग मामला है। तो इसमें अब एक और जिसे कहते हैं नाले पे दहला, एक तो सियासत में वैसे ही एक गंद था, लेकिन अब मजीद गंद यह है कि सेनेट इलेक्शन, इसकी एक मंडी लगी हुई है वहां पे। ऐसा शोर मचा हुआ है, आप आज के टॉक शोज में आपने देखा होगा, पाकिस्तान के सारे चैनल्स पे बंदर बांट है, लूट खसूट है, फलां को टिकट दे दिया, फलां से ले लिया। खुद वजीर आजम कह रहे हैं कि 50 से 70 करोड़ रुपए का एक सेनेटर जो है उसका रेट लग रहा है एमपीएज एमएनएज को। कुछ वीडियोस भी आई हैं इस पे। हमारे जो सादिक और अमीन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले 2018 का एक क्लिप देखा हमने, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने खुद वीडियो देखी है कि जिसमें ये एमपीएस पैसे ले रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों उन सादिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये वीडियोस मैंने अभी देखी हैं, उससे पहले मैंने देखी नहीं थी। तो इमरान खान आज, मुझे वो शायद खकान अब्बासी की सियासत से बिल्कुल बेशक हम बिल्कुल उलट हों या उनसे मुतफिक ना हो, लेकिन आज उन्होंने एक जुमला कहा टॉक शो में, मूसी भाई सुनने वाला है, कि इमरान खान एक दिन आएगा, वो सारा मलबा कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह पे भी डाल देंगे कि ये अगर ना बनाते तो ये सारे मसाइल ना होते। क्योंकि वो साबका हुकूमतों तक तो वो डालते हैं कि ये नून लीग की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन अगर उससे भी बस ना चला तो वो एक दिन कह देंगे कि हाँ, ये कायद आजम ने जो मुल्क बनाया तो ये गलत बनाया। तो पहले तो ये जो हमारी सियासी जो गंद है, इस पर अगर आप भी कुछ बात करना चाहें, फिर साथ साथ खबरें भी हैं और नाज़रीन आपकी कॉल्स भी हैं। जी मूसी भाई। असल में देखिए, ये तो 70 साल का मामला है और पाकिस्तानियों पर पाकिस्तानियों की हुकूमत कहाँ आई है। लियाकत अली खान साहब के बाद बानियाने पाकिस्तान जो थे, सही उसके बात। बाद आप देख लें पाकिस्तान के ऊपर कुछ जो है वो कब्जा सा हो गया ब्यूरोक्रेसी का, और जो है वो एक इदारों ने मिल के जो है वो पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, और उसमें बंदरबाट होती रहती है। फिर उन्हीं की कोख से सियासी पार्टियां जन्म लेती हैं। सियासी पार्टियां भी जो हैं, जो जमहूरियत के दावेदार हैं, वो जी हाँ। वो कहाँ से आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, वो किस गेटवे से आएंगे? बिल्कुल। वो सब एक ही जगह से पैदा हुए हैं। चाहे वो पीपल्स हम्म। पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो आपकी जो एमक्यूएम हो, जितनी पार्टियां आप ले लें, कहीं ना कहीं से राब्ता जरूर मिलता है, पाल पोस के एक ही जगह से भेजा जाता है। तो जमहूरियत तो पाकिस्तान में जनाब अली लियाकत अली खान साहब के बाद मामला हो गए खत्म, और जी हाँ। पाकिस्तान पे हो गया कब्जा। उस दिन से लोगों के साथ यही तमाशा चल रहा है। अब कभी सेनेटर के ऊपर मामलात हैं, कभी कुछ है। बात मैं हमेशा यही कहता हूं कि इसमें अवामी अवामी आउटपुट क्या है, इससे अवाम को मिलने वाला क्या है, इसमें अवाम कहाँ खड़े हैं। लोग तो इस्तेमाल होते हैं। एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट दे रहा है कोई, कोई अपने ऐसे ही जो है वो खुश हो रहा है। मतलब अभी आपके सामने जरदारी साहब की शादी हुई, आप मुझे बताएं, जो कायदे अवाम के वारिस बनते हैं, उसमें अवाम कितनी थी? क्या अवाम को शामिल किया गया? क्या वो जिस तरह से कम अज कम बेनजीर भुट्टो की शादी थी, लियारी में जाके की थी उन्होंने, वहां पर हम्म। एक तबका शामिल था पीपल्स पार्टी का, एक चाहने वालों का। क्या इस वक्त क्या उसका बरक्स देखने में नहीं आया? तो ये आवाम को खुद सोचना चाहिए, कब तक इनके हाथों में डुगडुगी की तरह रक्स करते रहेंगे, कब तक आखिर? हम्म। ये इसमें लोगों का भी कसूर है। अगर हम ये कहेंगे भाई ये गरीब रखा है, जाहिल रखा है, पढ़ाया नहीं है, ठीक है, इतनी तो अकल सब में होती है, कॉमन सेंस है। इंसान अपना दोस्त दुश्मन तो सभी पहचानते हैं। इसके अंदर कोई आपको किसी जामियात से फारिग तहसील होने की जरूरत नहीं है। जो रोड पे कचरा भी छोड़ रहा है ना, वो भी अपना दोस्त और दुश्मन जरूर पहचानता है। कौन लोग हैं? हम्म। 70 साल से वोट दिए चले आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही। ठीक है फिर, बिल्कुल सही। ठीक है फिर जो हो रहा है इनके साथ, क्या कह सकते हैं। यही बात है, यही बात है। और लीजिए नाज़रीन, कॉल्स का भी आगाज करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मैं पेरिस से नवाज भट्ट करता हूँ। जी नवाज भट्ट साहब, शुक्रिया। तो मोहतरम मुकर्रम हमारे आगा साहब हैं और आपकी खिदमत में सलाम और आदाब। बहुत शुक्रिया। आज शाम रहमतुल्लाह। जी। ये जितने भी आए हैं ना हमारे डिक्टेटर और सिविल के, हमारे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये सिर्फ बात ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। किसी को कोशिश की कि अवाम ने क्या कहता है, हमारी सदा को अवाम ने किसी को
सुरमी वाली सरकार और क्या क्या पता नहीं खिताब दिए, और वो रहमतुल्लाह अलैह, और ये दूसरा इमाम खुमैनी नौजुबिल्ला ये आ रहा है, सब मसले हल कर देगा। जिस तरह बातें ये करने के लिए कोई अमल कुछ नहीं है, कोई बिल्कुल जीरो। वतन अजीज में जाहिर अमन मान है, लेकिन अभी शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का अमन मान है, लेकिन महंगाई ने वो गरीब अवाम का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। जी हाँ, अवाम को माजी या हाल के इंतखाबात से कोई दिलचस्पी नहीं, वो तो जरूरियात जिंदगी चाहते हैं। आज से कमों पे 40 साल से इस इंतजार में है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। माजी के करप्ट सियासतदानों के बुलंद बातों ने, मकारियों ने, इनकी मकारी अवाम को एक खतरनाक मोड़ पर अल्लाह खड़ा कर दिया है। गरीब अवाम का गरीबों के हिसाब से लूट मार कर बरूने ममालिक में याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं मिनिस्टर। कुछ मगरमच्छ इधर कुछ उधर। मौलाना साहब आए हैं, तशरीफ लाए हैं, ये भी तरह मुफ्त खाते रहे हैं। कश्मीर का कोई इन्होंने कोई मामला नहीं किया, ना बात करने का तरीका। ये गरीब अवाम का पैसा की बीमारियों पे लगेगा जिन्होंने खाया है। सही सही। और किस पे है? जिसने खाया है, इनकी बीमारियों पे लगेगा। हादसात पर हादात का पेश करना पड़ेगा, हादसात को। इनको इंसान बन जाओ, कुछ भलाई तो कर लो। अब तुम्हारी टांगे जो है कब्र के करीब है, और आप ईवाने बाला सेना के लिए इंतखाबा शुरू हो गई है, और एक और ड्रामा शुरू हो गया है। सही बात है। पहले जो थे उन्होंने क्या किया है अवाम के लिए, और अब इन्होंने क्या करना है, देखिए अब आगे आगे होता है क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि पहलों ने क्या किया, जो अब एक और वहां पे मंडी लग रही है, तो वाकई अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन अब हमारे यहाँ सियासतदान पहले होता था ना कोई, बल्कि एक अखलाकियात के ऊपर ही सब कुछ, एक जो सियासत थी अब बड़े मुल्कों में जहाँ जमहूरियत है वो उसी के ऊपर खड़ी होती है। लेकिन अब तो जो लोग कहते थे एक जलसे में क्या कहा, और एक दोनों जो जमातें हैं वो 10-20 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग महाजराई रही, और जरदारी साहब ने जलसे में कहा कि मियां साहब अब जो उसके साथ हो गया उनको तो अब अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और जो नवाज शरीफ बरादरान या शरीफ बरादरान जो जरदारी साहब से मुतालिक कहते रहे कि पेट फाड़ देंगे और करप्शन का माल हम निकालेंगे, तो ये सारी चीजें देखें कि या मरियम साहिबा कहती मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। इमरान खान जिस एक्सटेंशन को, जब कियानी साहब को एक्सटेंशन आर्मी चीफ को दी गई, वो बड़े बड़े उनके खुतबे थे इमरान खान साहब के कि नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये आर्मी में जो भी जर्नैल है एक से बढ़कर एक है, एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आते साल उन्होंने उनको एक्सटेंशन दी, और जाहिर है अब ये मैं उनको, अब ये जो उनका टाइम चल रहा है उनका इमरान खान की एक्सटेंशन का टाइम चल रहा है। वरना ये सदर हिसाक साहब या लगारी साहब के दौर में होते तो इनकी दो बार असम्बलियां टूट चुकी होती, जो परफॉर्मेंस इनकी है। तो ये स्वाय मौका के इनकी जो एक टाइम चल रहा है, कहते कुछ है हो कुछ रहा है, और वो बस इस किस्म के ख्वाब हैं कि चंद फोटो सेशंस होते हैं। आपने वो देखा, इससे पहले भी हम प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, यस मैन है ना, यस लाइव कॉल पीटीवी के ऊपर एक ड्रामा बनाया गया। वो जो एक अनपॉपुलर जो एक होते थे ना, पहले गिलानी साहब कर चुके, नवाज शरीफ कर चुके जी, फोन उठाए हैं, अवाम के साथ घुल मिल गए। और इस किस्म की जो हमाकते हैं, वही ब्यूरोक्रेसी, वही जो कान भरने वाले ये कुछ लोग जो हैं, अब वो इमरान खान के दाएं बाएं हैं। और अगर वो वाकई अवाम की कुछ मसाइल जानना चाहते तो किसी भी मार्केट में चले जाएं, वहां पर पता चल जाएगा कि वहां पर दाल आटा जो है वो किस भाव बिक रहा है। तो अखलाकियात पर मुसीब भाई एक खबर मैं यहाँ की शेयर करता चलूं कि एक ब्लैकबर्न हमारी नवा में एक इलाका है, यहाँ के काउंसलर थे इफ्तिखार हुसैन, जो मेयर भी थे, बल्कि मेयर थे, और उन्होंने इन्हीं दिनों, कल परसों की बात है, कोविड लॉकडाउन के हवाले से कुछ इसकी खिलाफ वर्जी की है। एक शादी थी हमारे यहाँ, पता है कल्चर में हम ये लॉकडाउन, ये भी एक अफसोसनाक बात है कि आदतें जो बिगड़ी हैं वो बिगड़ी हुई हैं। तो शादी एक रची हुई थी, हालांकि दूसरी फैमिली को फिलहाल इन दिनों पे हम नहीं मिल सकते उनसे, लेकिन वहां पर कोई 8-9 लोगों का एक इज्तिमा था, और ये जो मेयर साहब थे वो वहां पर खाना पहुंचाने गए। तो खाना पहुंचाने पर उनकी जो खबर है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंची, लोगों से पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने उनको
9 लोगों को जुर्माना किया, तो आज भी लाकर उनको मेयरशिप से इस्तीफा देना पड़ा है। यानी एक मेयर जो है वो इस किस्म की जो चालाकी है, ये इस किस्म की हमाकत, ये क्योंकि ये जो भी अगर अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहता है, चाहे कौंसलर हो चाहे वजीर आजम हो, उसने एक ट्रेंड सेट करना है, उसने अखलाकियात पर अपने आप को सबसे ऊंचा रखना है, तब ये आम लोगों की वो रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। तो ये यूके या ये जमहूरी माशरों में ऐसे होता है कि जो छोटी मोटी भी अगर गलती हो जाए तो फिर उसको अवाम की नुमाइंदगी करने का कोई हक नहीं होता। लेकिन हमारे यहां देखें कि अब अवाम की नुमाइंदगी वो लोग कर रहे हैं कि जिनका पता है, जिनका बाल बाल जो है वो करप्शन में भीगा हुआ है, डूबा हुआ है, लेकिन वो माशाल्लाह दोबारा कह रहे हैं कि नहीं जी साबित करो। साबित कौन करेगा भाई? वो जज भी आपके, वकील भी आपके, वो नैब के, वो माशाल्लाह वो भी आपके। तो ये साबित करने वाले भी आपके हों तो फिर कैसे साबित होगा? तो ये है मुवाजना। अगर हम दोनों ममालिक का, एक मेयर जो है उसको हटना पड़ा, लेकिन वहां पर यूसुफ रजा गिलानी अब सेनेटर बनने जा रहे हैं। अब मैं तुर्की वो हार वाली बात करूंगा तो फिर वो एक अजीब लगेगा। हमें हमें बात दोहराते हुए शर्म आ रही है यार कि कितनी बार हम कहें, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि जो बार बार कहते हैं कि जी हम आपके खादिम हैं। एक कॉल लेने के बाद फिर मैं आपका जज्बा देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं आप भी फटने वाले हैं, तो मैं एक कॉल ले लूं पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, जी बहन, बात कीजिए बहन। मेरे 2-3 प्लीज पॉइंट है, मैं इतनी देर नहीं कहूँगी लेकिन नहीं आप पॉइंट दीजिए बहन, पॉइंट दीजिए बहन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अजब रस्म है चारा घरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। वाह वाह वाह। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। वाह वाह वाह। तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले मेरा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजरिम होना चाहिए, चाहे वो सियासी मुजरिम हो चाहे कोई भी हो। जी हाँ, तो जिनके पास इतने बड़े बड़े इख्तियारात होते हैं और एक पूरे मुल्क को लीड कर रहे थे, अगर वो मुजरिम है तो आप उनको कटहरे में खड़े नहीं, हम सियासी मामलात में दखल नहीं दे सकते। ये कौन सा मंतक आप किसको समझा रहे हैं? आपको शर्म भी नहीं आती कि आप लोग क्या ये मीडिया पर क्या तमाशा लगाया हुआ है? दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि इमरान खान, ये कोई आपका खेल का मैदान नहीं है कि आपने छक्का मारा और सब कुछ आपने हासिल कर दिया। ये आपका खेल का मैदान नहीं है कि आप आज कहा कि मदीना की रियासत ला रहे और इतनी तौहीन मदीना की रियासत की, इनको कहें कि ये तौहीन नहीं करे मदीना की रियासत की। आप देखे कि कुत्ता भी मदीना की रियासत में ये था कि कुत्ता भी मारा गया, भूखा तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। आज मुझे बताएं कि सेनेट की इलेक्शन के लिए जब मीडिया पर कोई खबर आती है, मीडिया पर वीडियो चलती है, तो आप सोए होते हैं कि आप जाग जाते हैं और फिर आप नजरसानी करते हैं, या तो आप बेखबर हैं, इतने बेखबर हैं कि आपको नहीं पता कि इतने बड़े बड़े अब्दुल कादिर जैसे अरबपति लोग जो सेनेट की सीटें खरीद रहे हैं और आप उनको दे रहे हैं, इतनी बड़ी अथॉरिटी दे रहे हैं ऐसे माफिया को और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन को, अरबपति लोगों को आप सेनेट की सीटें भेज रहे हैं। और फिर जब मीडिया पर खबर आती है तो कहते हैं कि ऐसे जैसे कोई सोया हुआ जाग गया है और आप नजरसानी करेंगे। इतने आम इशू पर आप नजरसानी नहीं करते तो आप किस पर नजरसानी करेंगे? मुझे बताएं, आप ही मुझे भाई बताएं कि किस चीज के ऊपर ये नजरसानी करेंगे अगर इस सेनेट के मेंबर्स की सिलेक्शन में आप नजरसानी नहीं करते और फिर मीडिया पे जब वीडियो चलती है तो आपकी पार्टी के जो क्रिमिनल्स हैं, जो इतने बड़े बड़े टाइकून हैं, जो इतने बड़े बड़े माफियाज हैं, वो सामने आते हैं, सामने कारोबार हो रहा है सेनेट के इलेक्शन का। मतलब कि ये कोई शर्म, कोई हया, कोई इनको गैरत है कि ये वो कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? तो आप क्या कहते हैं कि वीडियो और ये और वो, और मीडिया ने जिस तरीके से मीडिया इनको डिफेंड कर रहा है और जिस तरीके से मीडिया जो है वो बात का इधर का उधर, और ठीक है कुछ चैनल जो है वो क्या कहते हैं सामने बुला रहे, यकीन आप करें कि इंसान का वजूद का, मैंने आपके चैनल पर ही इसको कहा था इमरान खान की ये डोंगी बाबा और इसके चेले, तो सबने बुरा मनाया था कि ये क्यों कह रही है कि डोंगी बाबा और चेले। आज वीडियो जो है ना
उसने हकीकत बता दी है कि ये जोगी बाबा और उसके चेले और मदीना की रियासत की खुदा के लिए आइंदा अपनी जुबान पर लाए। पहले आपने सुनामी क्या कह के, वो सुनामी तो आ चुका है, महंगाई का, कर्जों का, हर तरह की जो पाकिस्तान के साथ आपने सुनामी ले आए, सैलाब ले आए, तूफान ले आए। अब मदीना का रियासत का नारा लगाते और अंदर जो काले धंधे हो रहे हैं, जो काले करतूत हो रहे हैं, वो आप छुपाना चाहते हैं। आपसे ये क्रिकेट का मैदान है कि वो खेल रहे हैं। सही है, आपका पॉइंट आ गया बहन, रिपीट हो रही बातें। सही है बहन, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। एक तो बस वो एक कुछ लोगों को उन्होंने खुश करना होता है या कुछ या अपने आप को ही खुश करना होता है। जाहिर है लोग उनसे अब क्या खुश हो रहे होंगे कि नाम ले रहे मदीना की रियासत। लीजिए मुसी भाई, ओवर टू यू। अखलाकियात और ब्लैक बर्न और फिर हमारे यहाँ। देखें, ये तमाम चीजें सबके सामने हैं, लोगों के सामने हैं। जितना मैं वही कह रहा हूँ ना, पूरी 70 साल की तारीख है लोगों के समझने के लिए। जनरेशन दर जनरेशन आप एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। आप जिन खानदानों ने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उनकी माशी सूरत हाल कहाँ थी और इस वक्त कहाँ है, और जो वोटर है उसके पास आज क्या है। जो कुछ था वो भी छिन चुका। तालीम बच्चों को दिलवा नहीं सकता। यानी मैं कहीं पढ़ रहा था कि कई हजार की तादाद में सिर्फ लाहौर से खबर थी कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम स्कूलों से कटवा लिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे कहीं बड़ी तादाद अगर सर्वे कराया जाए तो कराची से बरामद होगी, ज्यादा गुंजान आबादी है। ये पूरे पाकिस्तान में यह हालत है। देखिए, इमरान खान साहब का जो मामला है वो सबके सामने है। जहां तक जो आप कह रहे थे, मतलब कि नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के लिए कहा, जरदारी साहब ने हुकूमत में उन्होंने नून के लिए ये कहा, ये सारी चीजें रही, ये आपस में लड़ रहे थे। मगर इमरान खान साहब की पॉलिसीज ने इनको यकजा कर दिया और इनको मुत्तहद कर दिया। उसकी वजह यह है कि लोगों ने चांस दिया था। लोगों के सामने एक नारा था, लोग इन दोनों पार्टियों से बेजार थे। बार बार की जो है ना एक म्यूजिकल चेयर से लोग बेजार थे। लोगों ने इमरान खान पे सिर्फ इसलिए कि वो एक क्रिकेटर रहे हैं, वो एक पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने आप को बड़ा जो है वो पेश किया, और शौकत खानम का एक बैकग्राउंड था, फिर एक आला तालीम याफ्ता एक बैकग्राउंड था। लोगों को उम्मीद थी कम से कम इन दो पार्टियों से हटकर तहरीक इंसाफ कुछ जो है वो डिलीवर करेगी। मगर इमरान खान साहब ने जिस तरह से जिस नहज पर जाके मायूस किया, उसका सबब है कि ये दो पार्टियां जो आपस में लड़ रही थी, इनको मौका मिल गया कि ये एक नए ढोंग के साथ, एक नए जो है कि स्लोगन्स के साथ दोबारा से आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मुत्तहिद हो जाएं, एक नए चेहरे के साथ सामने आ जाएं। अब लोग ये कहने पर आ गए हैं कि इससे बेहतर तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इससे बेहतर तो जरदारी की हुकूमत थी, इससे बेहतर तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। ये क्या हमारे ऊपर जो है एक अजाब आ गया कि महंगाई का तूफान है। आम आदमी को खारजा पॉलिसी आप मत समझाएं, एक आम आदमी को वजारत दाखिला के जो प्रोटोकॉल है मत समझाएं। एक आम आदमी को बताएं कि उसको 2 वक्त की रोटी आप दे पा रहे हैं या नहीं, उसकी नौकरी तो नहीं जाएगी, उसके ऊपर उससे छत तो नहीं छिन जाएगी, उसके बच्चों को अद्वियात मिलेंगी, पीने का साफ पानी मिलेगा। वो ये चाहता है। वो आप देने में बुरी तरह से नाकाम है। आए दिन 16 रुपए, 17 रुपए, 15 रुपए पेट्रोल बढ़ रहा है। लोगों को किसी चीज से गरज नहीं है। ये वो सबब है जिसने पिछले हुकूमतों को जो गए थे, बेइज्जत होकर गए थे, उनका इत्तेहाद दोबारा से कायम हो गया आपकी इन गलत पॉलिसीज की वजह से। जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी आपको मुझे भाई को मेहरबानी। वालेकुम सलाम। जी, वही एक जना बार बार अगर कोसेंगे इस चीजें तो वही है फरूक भाई जी कि ये जो हुकूमत आई है इसको ये खबर ही नहीं थी कि आगे क्या पड़ा हुआ है। आगे वो कहते ना खाई, जो पीछे कुआं आगे खाई, वो हो गया इसके साथ। तो वो ऐसे करके दे के गए कि आप जैसे बस जो ना तैयार खड़ी है, तो जब उसको स्टार्ट किया, चलो हमारा नाम वो स्टार्ट हो, नीचे देखा तो टायर भी उतरे हुए, तो वो बस तो उधर ही खड़ी रहेगी। जो हुआ है आपके सामने है कि अगर चीनी है तो वो भी फैक्ट्रियां जितनी भी चीनी की हैं, 17 तो माशाल्लाह जरदारी साहब की हैं मिले जो चीनी बनाने की, और आटे की मिले थी, ये सारी इनकी थी अपना नवाज शरीफ की। क्योंकि मैं तो वहां पे लाहौर का रहने वाला हूँ, पंजाब फ्लोर मिल हमारे सामने थी घर की। जब ये कर्जे पे लेके चीज बनाते हैं, तो जब करप्ट जो वो आ जाती है अपना प्लस कर जाता है बैंक, तो उस
اس کا بینک کا ضائع ہوتا ہے نقصان. وہ جو زمین ہوتی ہے یا وہ بلڈنگ ہے تو وہ بینک والے لے لیتے ہیں, وہ آدھے داموں جو بک جائے تو بک جائے, تو وہ تو یہ اپنے قرضے معاف کراتے ہیں. ملک تو ایسے انہوں نے ڈبویا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں آگے کا, دیکھیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. یہ جو اب سینٹ کے ہو رہے ہیں, اب جو آدمی جس کو یہ مولانا فضل الرحمان بھی لے کے, یار یہ کیسے ایماندار ہے, داڑھی رکھی ہے, دین بھی جانتا ہے, اور وہاں پہ وہ یوسف رضا گیلانی کو لے کے آئے مشترکہ, جس نے ہار چرا لیا تھا. آپ دیکھیں جس بندے کی خود غریبی نہیں نکلی اس کے اندر سے, کہ اس کو ڈائمنڈ کا ہار دیا اردگان نے, اب وہ آدمی دوبارہ ہمارے اوپر لے کے آ رہے ہیں سینیٹر, تو وہ کیا انصاف کرے گا قانون کے ساتھ. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو لوگ کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ آ جائیں, تو پہلے وہ جو پہلے جب سوئس کا جو لیٹر لکھنا تھا, جتنا پیسہ تھا پڑا ہوا, اگر یہ لیٹر لکھ دیتا تو بینک والوں نے وہ پیسہ پاکستان کو آ جانا تھا. وہ نہیں لکھا, اس نے اپنے آپ کو جو نا وہ وزارت سے جو نا سب کو دوش کر دیا. اس کے بعد راجہ رینٹل آ گئے, اس نے آخری مہینہ تھا, اس نے جناب وہ جو بجلی کا طوفان جو اس نے جو مچایا, ہر بندہ ہی جو نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جیرا کپ ہوئی لال, صحیح ہے, وہ بھی آیا. لیکن انہوں کا ہی بندہ فیس شیخ ہے, انہوں نے آپ لا لیا سر. یہی وہ جیسے داتا دربار کی لائن لگی ہوتی ہے مجھے بھائی, وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ لنگر لینے, صحیح, تو جب ایک آگے سے لے کے کھا کے پھر پیچھے لائن میں آگے لگ جاتا ہے. یہ وہی جو ہمارے ساتھ چکر ہو رہا ہے, اور ہم گرے کر رہے ہیں 2 سال والے پہ. تو یہ تو لنگر میں وہی لائن لگی ہوئی ہے, اور مریم بھی آپ کے سامنے دیکھ لو کہ جا کے مہینہ چلے پوائنٹ آ گیا احمد صاحب کے اس 2 سال والے سے گلا نہیں کرنا. چلیں آگی بات آپ کی. جی محترم نقوی صاحب سن لیا آپ نے سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ کہہ رہے ہیں گلا. سب سے پہلے تو میں پرسہ پیش کروں گا امام نقیل اسلام کا, آپ سب کو سننے جزاک اللہ گرفتہ ہے امام کی شہادت پر. جزاک اللہ. فروغ بھائی, ایک میں نے بچپن میں ایک سٹوری سنی تھی. ہاں جی. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نظام سکا. ٹھیک ہے, سٹوری آپ کے ذہن میں ہوگی, میرے خیال میں آ جائے گی. صحیح ہے, بولیے. اس کو صرف 2 دن کے لیے ملی تھی حکومت, تو اس نے اور تک کچھ نہ کیا, نہ کچھ کر سکا. وہ جانتا ہی نہیں تھا حکومت کیا چیز ہے. وہ تو معاش کی تھا پانی بھرنے والا. بادشاہ نے اسے 2 دن کی حکومت دے دی, تو اس نے اور کچھ نہ کیا, تو اس نے نا اپنی مشق کاٹ کے نا چمڑے کے سکے لوگوں میں شروع کروا دیا, ایشو کروا دیے, چمڑے کے سکے. اور اسی وجہ سے اس کا نام آ گیا جی کہ نظامی سکے کی حکومت میں چمڑے کے سکے تھے, اور تو کچھ نہ ہوا, تو وہ نام چمڑے کے سکوں کا آ گیا. اب میں موسی بھائی سے آج ایک بڑا اہم سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. موسی بھائی آج مجھے صرف اتنا بتائیں, آپ جب بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جی 70 سال کا گن, 70 سال کا گن. چلو آج ہم آپ کی بات مانتے ہیں وقتی طور پہ, یہ 70 سال کا گن نکالنے کے لیے آپ کو یہی انسان نالائق انسان ملا تھا جو اس سے زیادہ گند ڈال کے چل جا رہا ہے, جس کا گند نکالنے کی بجائے اس کا اپنا گند اندر سے اتنا باہر نکلے کہ گٹر جو ہے ابلنے شروع ہو گئے. کیا یہی گند نکالنا چاہتے تھے آپ کہ اس کے اپنے گند کو سنبھالے یا دوسروں کو نکالے؟ پہلے تو یہ بتائیں. ایک نالائق آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت کرنی کیسے ہے, اس پہ آپ ابھی تک وکالت کر رہے ہیں اس کی, جی وہ 70 سال کا گند, 70 سال گند. تو اس نے کیا 2.5-3 سالوں میں کیا کیا ہے؟ کون سا گند نکالے؟ اس کا تو اپنا ہی گند اتنا نکل آیا کہ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے صرف یہ بتا دیں موسی بھائی کہ اس حکومت کے آنے پر ابھی راجہ رینٹل کی ایک کالر بات کر رہے جی, راجہ رینٹل اس کے دور میں 3 روپے کا یونٹ تھا بجلی کا, اور آج 30 روپے کا ہے. یہ ذرا راجہ رینٹل کا اور اپنا مقابلہ کر لیں, اور پھر سوچیں کہ بات کرنے سے پہلے کیسے بات کرنی ہے, اور سوچیں کہ اس کا جواب کیا ہے. آگے بات اب یہ کہ یہ جو موسی بھائی آپ اپنے دل پہ آ رہا کہ مجھے بتائیں کہ یہ عبد القادر جیسے 70 کروڑ کے اگر لے کے پیسے دے کے اگر سینٹ کی ٹکٹیں لے رہے ہیں, تو کیا ان کا 70 کروڑ واپس دے دیا ہے؟ کیا وہ ہضم ہو گیا, یا ڈکار لیا چینی چوروں کی طرح اور آٹا چوری کی طرح ڈکار لیا ہے, یا تو واپس کر دیا ہے؟
ٹھیک ہے. اب ایک طرف آپ لوگ اتنی آنکھ بند کر لیں کہ آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو تباہی ہو رہی ہے ملک کی، جس نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس پہ آپ کی نظر نہیں جاتی. اور جو 70 سال والوں نے آپ کو روٹی تو دی، آپ کی عزتیں تو بچی ہوئی تھی نا، آپ کے پیٹ تو ننگے نہیں کیے انہوں نے 15 روپے کا نان تو نہیں کیا، انہوں نے آپ کی سفید پوشی پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا. سفید پوشی تو موجود تھی نا، آپ نے سفید پوشی میں زندگی گزارتے رہے تھے. آج تو سفید پوش رہا ہی کوئی نہیں، آپ تو کسی کی عزت ہی نہیں محفوظ، آپ تو رو رہی ہے دنیا اور ہاتھ اٹھا کے بعد دعائیں مانگ رہی ہے کہ یا اللہ ہماری عزت بچا، اسے یہ کیسا عذاب ہمارے کو آ گیا. پھر بھی آپ وکالت کرتے ہیں اس کی جی نظام، اس کے یہ ریاستی نظام، یہ ریاست مدینہ کا نظام اسے کہتے ہیں. فاروق بھائی آپ ہی بتا دیں، ریاست مدینہ کا نظام یہی ہوتا ہے کہ اپنے انو رجائی آؤ تے دوجیاں نو چپ کرائی آؤ، اپنے انو رجائی آؤ تو دوجیاں نو چپ کرائی آؤ. یہی نظام ہے ریاست مدینہ کا، یہی نظام تھا اور اسی نظام کا نعرہ لگا کے آئے تھے کہ ہم آئیں گے تو یہی کچھ کریں گے. میں جواب دیتا ہوں. جو لوگ ہیں 90 ارب روپیہ جو بزدار نے اپنے علاقے میں لگا دیا ہے، کیا باقی پنجاب اس کا نہیں ہے؟ وہاں پہ تو 10 پیسے نہیں لگائے اس نے، اور آج پھر اب یہ اس کہتے ہیں جی نہیں جی وہ یہ ہے نہیں جی 70 سال کا گند ہے. یہ آپ گند جب سمیٹو گے نا تو 30 سال لگ جائیں گے آپ کو. پہلے تو قرض اتارو نا، جو 40 ایک بچے کا 2 لاکھ کا قرض ہو چکا ہے، وہ اتارو گے نا تو 100 سال آپ کا یہی گزر جائے گا. صحیح ہے، پھر آپ بات کریں گے. میں آخر میں صرف یہ کروں گا موسی بھائی، آپ جب بات کرتے ہیں نا تو ذرا کریں جو ناک کے سامنے ہو اس پہ بات نہ کیا کریں، صرف دائیں بائیں دیکھ لیا کریں کہ دائیں بائیں کے کیا نلائکیاں، جس نلائکی کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے. میں جواب دے رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ نقوی صاحب. پہلے تو آپ نے جو بزدار صاحب کا کہا، یہی بات آپ اینن کئی سال تک ہر شو میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے لیے کہتے رہے کہ جی وہ صرف پورے پاکستان چھوڑ کے صرف جو ہے وہ پیسہ لگا رہا ہے لاہور کے اوپر. پہلے آپ کو یہ ایک پرابلم تھی. اب آپ بزدار صاحب کہہ رہے ٹھیک ہے، بزدار پورے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے تو پورے پنجاب پہ کام کرنا چاہیے. میں آپ کی بات کو وہ نہیں کہہ رہا، مگر آپ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کہہ چکے. اب رہی بات 70 سال کی، آپ 70 سال جو میں نے حوالہ دیا، میں نے عوام کو جگانے کے لیے حوالہ دیا، نہ کہ عمران خان کی حمایت میں دیا کہ جی 70 سال کا گھر ہے، عمران خان سے تو کچھ نہیں ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا. میرا کہنا تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حمایتی آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو حکومت کرنی نہیں آتی تھی، عمران خان کو سیاست کرنی نہیں آتی تھی، عمران خان کو اور ٹائم ملنا چاہیے، بہت پرانا گند ہے، تو میں ان کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور آپ کی جو پوری کیبنٹ ہے، آپ کے جو تمام لوگ ہیں، یہ سارے وہی ہیں جو مشرف صاحب کے دور میں تھے. نئے آدمی کون ہے اس میں جو نئے لوگ تھے وہ تو شروع کے ہی ہفتوں میں شروع کے ہی ہفتوں میں وہ کلین بورڈ ہو گئے، وہ تو چلے گئے. جو نئے لوگ آئے تھے وہ تو ٹک ہی نہیں پائے اس ہوا کے جھونکے کے سامنے. آپ کے ساتھ تو سارے پرانے بیٹھے ہوئے اور ان سب کو معلوم تھا کہ اپینڈکس کے اندر کیا ہے، اندر معاملہ کیا ہے، وہ تو سب جانتے تھے. تو یہ کہنا کہ جی نئی حکومت کو کچھ نہیں پتا، نہیں ہے. یہ میرا ذاتی میں میرا رائے ہے، ٹھیک ہے، میری ذاتی رائے. اب رہی بات نقوی صاحب کی، جو میں نے 70 سال بار بار کہہ رہا ہوں، 70 سال کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں عوام کے شعور کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں تمہارے ساتھ 70 سال سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہی آگے چل رہا ہے. اس میں کبھی تیزی آ جاتی ہے، کبھی تھوڑی کمی آ جاتی ہے. ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جی اس وقت روٹی تک چھین لی گئی ہے، تو اس سے پہلے تم اپنے جنازے دفناتے رہے ہو، 80,000 شہدا دیے تم نے، افغانستان کی جنگ تمہارے بارڈر کے اندر آ گئی، امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی تم بن گئے. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اسلامی جو ہے وہ ایک سسٹم کی بات ہوتی رہی. مطلب کھیل ہوتا رہا 70 سالوں سے. میں جو 70 سال کی بات کر رہا ہوں وہ میں اس زمرے میں کر رہا ہوں، نہ کہ عمران خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب چونکہ کرسی اقتدار کے اوپر ہے تو ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، وہی جواب دہ ہیں پورے ملک کے طول و عرض میں. جو بھوکا سوئے گا وہ ذمہ دار، جو قتل ہوگا وہ ذمہ دار، کیونکہ وہ حاکم وقت ہے. ہماری ذاتی دشمنی کوئی کسی سے نہیں ہے، مگر جو جس کی مسئولیت رکھتا ہے اس کا جواب دے. اور وہ پہلی میرے خیال میں بات کلیئر ہو گئی ہوگی. ہمیں تو میرے خیال میں بات کلیئر ہو گئی ایسا وہ جسے کہتے ہیں نا، ابھی تربوز کاٹنے سے پہلے ہمیں کیا پتا تھا نیچے لال ہے یا نہیں لال. یہ تو ابھی 2-2.5 سال کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ
मगर इनकी काबीना तो पूरी मुशर्रफ साहब वाली है ना, वो तो नए खिलाड़ी थोड़ी हैं, वो तो सब 6 बार पार्टियां तब्दील कर चुके हैं भाई, वो तो सब जानते हैं कितने कर्जे लिए गए, कैसे चली हुकूमत, हाउस ट्रेडिंग कैसे होती है, सब जानते हैं। जी हाँ, और ये उनके खुद अपनी मर्जी से हैं, ये नहीं कि इमरान खान से कोई बाला ही है, उनकी चॉइस है, उनकी ये चॉइस थी। बुज़दार साहब ये सारे मेरे साथ कॉलर होल्ड पे हैं, पहले उनसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अस्सलाम मदद। जी मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब शुक्रिया। मोती भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अस्सलाम मदद। वालेकुम सलाम मौला अली मदद। तो भाई आपका और मोती भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मंडे का इंतजार करते रहते हैं कि एक ऐसा ही आपका प्रोग्राम है कि जिसमें हम खुल के बात कर सकते हैं और हर बात हर अपनी इंसान जो है ना अपने दायरे में रह के, इखलाक के दायरे में रह के बात करता है। मोती भाई आपसे भी और फारूक भाई आपसे भी एक सवाल है कि रियासत पाकिस्तान के अंदर कौन रह गया है कि जो पाकिस्तान को एक अच्छी सिमत लेके जाए? मियाँ साहब हो या जरदारी हो या बिलावल हो या मरियम हो या इमरान हो या कोई जर्नैल हो। मेरा ख्याल है कि 70 साल से 50 साल तो जर्नैलों ने ही खा गए, बाकी सियासतदान खा गए। तो कारकुन जो है ना वो क्या करता है कि इमरान खान आप बेनपाई कर गया, मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, अल्लाह जाने मुल्क का क्या हाल होगा। एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा फारूक भाई, इस साल अभी एक हफ्ता पहले 11 फरवरी शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट के डे के रोज मुजफ्फराबाद के अंदर हमारे कामरेड नेशनल अवामी पार्टी के जो स्टूडेंट हैं उनको खुफिया अदारों ने उठा के रात को 11 फरवरी की रात को उनका कमरा तोड़ के उनको ले गए और आज कितने 4-5 दिन से उनका बिल्कुल कोई पता नहीं चला। थाने जाते हैं लोग तो कहते हैं हमें नहीं पता। तो खुदा के वास्ते फारूक भाई मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, देखें ये बात असल है कि आज़ाद कश्मीर जिसको नाम नाद आज़ाद कश्मीर कहते हैं ना, इनके कंट्रोल में है। वहाँ इनके खुफिया अदारे हैं, ऑन द प्रूफ मैं आपको बता सकता हूँ, कोटली में है, मीरपुर में है, डडियाल में है, मुजफ्फराबाद में। उसको उठा के लेके पता नहीं कहाँ लेके गए, लेकिन हम तो हर रोज हमारी जमात क्या पूरे कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं, बाहर निकले हुए हैं, कोई भी इसका जवाब नहीं दे रहा। आखिर ये क्या करना चाहते हैं आजाद कश्मीर के अंदर? तो जैसा कि आपको पता है कि डडियाल के अंदर राजा तनवीर के ऊपर एक केस लगा हुआ है, वहां जज साहब ने ये लिख के दिया कि राजा तनवीर ने पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती नहीं की, तो आखिर उनको किस बात की सजा दी जा रही है? कल उसका एक छोटा बेटा जिसका मुजतबा नाम है वो आया और उसने सोशल मीडिया के ऊपर कह दिया कि मेरे पापा ने भूख हड़ताल की है 11 फरवरी की। अगर उनको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है फारूक भाई? तो ये मैं आपसे कह दूं प्रूफ के साथ, कोटली के अंदर, डडियाल के अंदर और इन इलाकों के अंदर पाकिस्तान के लोग जो चारसदा, पेशावर या इन लोगों के पठान बताए जा रहे हैं और उनको गवाह, झूठे गवाह पेश किए जा रहे हैं। आखिर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इनके अदारे और ये जो इनको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, ये क्या करना चाहते हैं आजाद कश्मीर के अंदर? कोई भी बंदा अगर सवाल ये सुन रहा है, आखिर इनको क्या चाहिए आजाद कश्मीर के अंदर जो इन छोटे बच्चों को अगवा करके क्या कहना चाहते हैं? लेकिन कल भी हमारी बहुत बड़ी रियासत के अंदर एक एहतजाज जारी हो रहा है, कल निकलेंगे लोग बाहर, लेकिन आखिर इसकी वजह बताई दी जाए। क्या हम रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं फारूक भाई? क्या हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात? अगर हम अपनी आजादी की बात कर रहे हैं, अपनी खुद मुख्तारी की बात करें, अपने हकूक की बात करें, तो ये हमें उठा के ले जाते हैं और पता भी नहीं चलता। इनकी अदालतें लगी हुई हैं, इनके आर्मी ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनके एजेंसियों वाले बैठे हैं। जब बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि यार ये मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बात। खुदा के लिए हम कितनी दफा हम ये वादा कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं बात करते, लेकिन ये जो बदमाश, ये जो टोले, ये जो आपने आजाद कश्मीर के अंदर बैठाए हुए हैं, आखिर क्या चाहते हैं हम लोगों से? क्या हम अपनी आजादी की बात भी ना करें? अपने मुल्क के अंदर देखें, कराची के अंदर देखें, हम अपने शियू को रो रहे हैं कि शियू को उठा के मार दिया जाता है, मिसिंग पर्सिंग हो जाती है। बलूचिस्तान के अंदर क्या है? अपने मुल्क की हिफाजत तो आप कर नहीं सकते, दूसरों को भी ये आप किस तरफ लेके जा रहे हैं फारूक भाई? लेकिन एक ही सवाल है कि कोई बचा है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करके इस गरीब अवाम को कोई सीधा रास्ता दिखा सके? जो भी हो, बच्चे देखो इनके अमेरिका में, बरतानिया में जर्नल है कोई, उसके बच्चे देखें, उनके घर देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनको उनके पास पैसा देखें, कोई बंदा बात नहीं करता उनके खिलाफ। बस इमरान
यहाँ डैम के लिए पैसा इकट्ठा किया। कोई बंदा पूछ सकता है उसके साथ, कोई किसी में ताकत है तो उसके चीफ जस्टिस से पूछे, भाई तुमने जो इतने पैसे बरतानिया यूके से कश्मीरियों से इकट्ठे करके लाए, किधर गए? कोई नहीं पूछ सकता। ये बस मुझ जैसा आप जैसा छोटा सा कारकुन हो के बस आवाज बुलंद करता है, और अगर वो ये आवाज मुल्क में बुलंद होती है ना तो 24 घंटे के अंदर उसको उठा के लेके जाते हैं। लेकिन खुदा के लिए कुछ ऐसा करो कि दुनिया याद करे। लेकिन ये बात सोच ले, एक ताकत में बार बार कहता हूँ कि वो रब इज्जत की आप ऊपर बैठी है, वो मजलूमों का साथ देगी। इतना करो कि जितना कल बर्दाश्त कर सको। खुदा के लिए हम मासूमों के ऊपर ये जुल्म मत करो। उसकी तस्वीरें जारी हुई हैं, उसके फोटो है मेरे पास, उसकी FIR है मेरे पास, जो मैं रोज ये सोशल मीडिया के ऊपर इल्तिजा करता हूँ कि अगर पाकिस्तानी लोग हमारा साथ देना चाहते हैं तो मजलूमों का साथ दो, खुदा के लिए लुटेरों का साथ मत दो। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, बड़ी लंबी बात आपने मुझे करने की इजाजत दी। कोई बात नहीं, आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया मौला अली मदद, और बात करना आपका हक है। और यकीनन जो अभी तो खैर मिसिंग पर्सन्स के हवाले से आपने आज़ाद कश्मीर की बात की, बलूचिस्तान की दुहाई है, कराची में बहुत से मिसिंग पर्सन्स हैं, तो ये हम तो आवाज़ उठाते ही रहे हैं कि इस पर कोई भी अगर कोई मुकदमा है वो चलाया जाए, पता चले कि ये कोई अगर जुर्म है तो उसका मुजरम को भी पता हो कि मैंने ये जुर्म किया है। तो इस किस्म के मामला जो हैं वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे आज़ाद कश्मीर हो, लेकिन इमरान खान पे अभी हम तकरीबन 1.5 घंटा हो गया तनकीद ही कर रहे हैं, लेकिन 5 फरवरी को कश्मीर के मामले में जो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने एक ऑप्शन ये तो खुला ऐलान कह दिया कि अगर आज़ाद कश्मीर बल्कि कश्मीर के जो लोग हैं अगर वो तीसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की तरफ से एक जिसे कहते हैं ना मसले के हल के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है, जिस पर हम वही कहते हैं कि जो जिसकी तारीफ जितनी बनती वो करनी चाहिए। तो इमरान खान की या इस मौजूदा जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, फौज है, वो ये चाह रही है कि कश्मीर का मसला हल हो, लेकिन इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है आपने 5 अगस्त से देख लिया, कई अब तो साल से ज्यादा अरसा हो गया, वहां पर जो कानून की या शहरियत के मसाइल जो हैं, और तकरीबन 8 लाख के करीब वहां पर नॉन कश्मीरी लोगों को इंडियन कश्मीर में आबाद किया जा रहा है, और जिस तरह से वहां प्लानिंग के साथ कश्मीरियों को उनको जकड़ा जा रहा है, ये मामला भी हमारे सामने है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का जेरे इस कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उस पर भी हम देख सकते हैं कि इस किस्म के वाक़यात ज़रूर होते हैं, लेकिन वो और मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के ज़ेर इस्तेमाल है, उसके मुवाजना जो है वो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कॉल लेने के बाद मूसी भाई अगर आप भी इस पर कुछ कहना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं एक पॉइंट आपके साथ करना चाहता हूँ। जी मेहरबानी। जब राजा रेंटल था तो 4 रुपए का उसने यूनिट का ये उनके जाले जो उनसे भी आगे कदम जाते 3 कह दिया उसने असेंबली में। तो उस वक्त का आप के पास तस्वीरें होती है, आपके पास रिकॉर्ड होता है, आप दिखाएं कि उस वक्त 22 घंटे जो है लोड शेडिंग होती थी। तो उस वक्त तो 3-4 का यूनिट तो होना था। अब ये देखें कि जब गया था मुशर्रफ 60 रुपए का डॉलर था और इन्होंने हुकूमत ली थी उसके बाद। अब डॉलर देखो कहाँ पे जा रहा है, और महंगाई की रेशो क्या थी जब ये आए थे। और दूसरा आप देखें कि गंदम जो है 4-6 साल पुरानी निकाल के वो शाह जो है क्या नाम है वहां पे, आप तो नाम जानते हैं, मैं भूल गया इनका, तो वो दिखा रहे हैं अब गंदम जो इन्होंने नहीं खरीदी और वो पुरानी पकड़ के मुर्गियों को अब डाल रहे हैं। और जितना नाला था वो गुजर नाला, उसके ऊपर छतें डालकर वो सारा बारिश का पानी आया, कराची डूब गया बगैर फ्लड आने से दरियाओं की तरफ से, बल्कि ये बारिश का इतना पानी सैलाब आ गया। तो जो लोगों को जमीनें जो दी हुई है अलाटमेंट की हुई है इन्होंने जो फ्री में, तो उन्होंने कुंडे लगा कर बिजली के भी आपके पास मौजूद है कि क्या पूरा दिन बिजली जलाता है वो कुंडों के साथ, तो वो तो जाला ऑटोमेटिक बन गया, उसको ना बिजली पैसे देने पड़ते, ना गैस के ना पानी के। सही है साहब, जो गन्नम है वो पूरा सिंध नहीं भाई, गोदामों में बोरियों में मट्टी भरती फ्री में सारा चल रहा है। 9 दफा वो कामों की टोली सबकी ये कोई बोली जो है कि ये जो सब बोलते हैं वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ये मूसी भाई अगर सच्ची बातें करते हैं तो सच्ची बात कड़वी होती है, और वो टीका जो है ना वो जब सुई चुभती है तो दर्द होती है, तो जब सच्ची बात है वो उसके लिए दर्द होता है, तो दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि बेईमानों को पीछे
चले जाना चाहिए। अगर हम दोबारा वही बंदे जो हाथ चोरी करके हैं तो वो क्या कानून बनने देंगे कोई? जैसे सेनेट में बार बार वो कहता है कि आज वो बैठ कर कानून बनाते हैं, ये बनाना नहीं चाहते क्योंकि ये पैसों वाली जो होते हैं, जिस बच्चे को आदत हो जाए चारपाई के ऊपर वो टॉयलेट लैट्रिन करने की, वो उधर ही करता है, कि वो नीचे नहीं कर सकता। इन्होंने वैसे ही करना है। और ये जो आप बेशक जज बार बार सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है कि आपको पैसे मिलते हुए गड्डियां नजर करते, वो जो और गिन रही है पूरी गड्डियां जो है पैसों की गिनी जा रही है। सही है, सही है। आप भी पानी पिए अहमद साहब, कोई मसला नहीं, ये आपके पॉइंट हम लेते रहते हैं, फिर लेते रहेंगे। जी मुसी भाई, देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो कश्मीर में बात की हमारे भट्ट साहब ने, और उसके ऊपर आपने कमेंट्स दिया कि जी इमरान खान साहब की तकरीर का आपने गालिबन रेफरेंस पेश किया, तो ये करना किसने है? इमरान खान साहब ने अगर ये जो ये बात की है, बात बहुत अच्छी है कि जी कश्मीरी तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। कश्मीरियों का नारा भी यही है कि आज़ाद खुद मुख्तार कश्मीर, उसके बाद कश्मीर जिससे चाहेगा इलाक करेगा। अच्छा ये कैसे होगा? मतलब ये कह देने से हो जाएगा? आजाद कश्मीर का अगर मैं सवाल करूं, वजीर खारजा कौन है? क्या जवाब देंगे? कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए वजारत खारजा से कश्मीर के लिए कौन जाता है? आजाद है ना भाई, मकबूजा तो हिंदुस्तान का है, आप तो आजाद हैं, तो आजाद कश्मीर से वजीर खारजा कौन जाता है? क्यों शाह महमूद कुरैशी जा रहे हैं? क्यों इससे पहले और लोग जाते रहे? कश्मीर अगर आजाद है तो कश्मीर का वजीर खारजा आजाद जाना चाहिए, और पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ अगली मेज पे उसको खड़ा होना चाहिए। और जब वो बात करे तो पाकिस्तान नहीं तो वजीर आजम ही चला जाए आजाद कश्मीर। नहीं, अगर आजाद सेटअप है तो वजीर खारजा जाए, और जब वो यूएनओ के साथ बात करे तो उसकी अगली डेस्क के ऊपर उनका पीएम बात करे तो हमारा पीएम उसको इंडोर्स करे और लॉबिंग करे कि पाकिस्तान के जितने इत्तेहादी हैं वो उसके हक में वोट दें। तो कश्मीर इस तरह से आजाद होगा, और कश्मीर इस तरह से आजाद होगा कि आजाद कश्मीर से लेके गिलगित बिल्तिस्तान तक आजाद करना होगा। सही सही। भट्ट साहब की बात सुन के फिर आप उसका दोबारा बात कीजिएगा। जी भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, मौला अली मदद। दिल तो नहीं करता था, मोती भाई बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। नहीं आइए, कोई मसला नहीं। जी सर। जी मैं सुन रहा था, लेकिन आपने एक बात की कि इमरान खान साहब ने ये कहा, शायद आपको पता नहीं फारूक भाई, 1 वीक पहले 5 फरवरी से ऑन द प्रूफ जी पूरी कोटली के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया। जब मैं कहता हूँ कि मैं अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इनके बंदे पाकिस्तानी रियासत से कोटली में जाके जरगमला बना दिया गया सारी कोटली। पहली बात मैं आपको बताऊं, आपने वो फोटो नहीं देखा, वो इसके वो मेहमान खुसूसी में नाम, वजह क्या थी भट्ट साहब, वजह क्या थी? वो बच्चों को वो बाढ़ देखी थी आपने जो लगी ग्राउंड में? भट्ट साहब वजह क्या थी? मुझे ये तो थोड़ा भट्ट साहब इंटरेक्शन रखिएगा ना, थोड़ा सा सवाल जो आप, मैं यही पूछा वजह क्या थी, कर्फ्यू की क्या वजह थी? एक तो जलसा था वहां पे, इस वजह से। मैं आपको वजह बता दूं साफ साफ जी। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर तुम्हें आपको सॉरी फारूक भाई जी, आपको पता है कि जब ये पहली दफा मुजफ्फराबाद गया था, जी उस लड़के का नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ। उस जलसे में उठ के खड़े होके उस लड़के ने इमरान खान के सामने कहा था कि कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा, ऐसा नारा जैसे हमारे नारे से लगाया, उसी वक्त उसको उठा के जेल में दे दिया। ये बात थी ना, ये सबूत ऑन द प्रूफ है। ठीक है। यही डर था इन एजेंसियों को कि कोई ऐसा ना हो कि कोई नेशनलिस्ट, और मैं आपको बताऊं, मैं आपको वो FIR दे सकता हूँ कोटली की, वो एसपी की। अच्छा भट्ट साहब वो तो जरूर होगा। भट्ट साहब एक सवाल हो रहा है, बिल्कुल सही, FIR हो सकता है, वो बनी गाला की FIR भी हो, इस किस्म के मामला यकीनन वो चल रहे होंगे, सिंध में चल रहे होंगे, पंजाब में चल रहे, लेकिन वो जो पॉइंट जो उन्होंने दिया है कि आपके पास ऑफिशियली, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूंगा। नहीं, इस बात पे बताइए जरा आप एज ए कश्मीरी, कि जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इस पर कोई एतराज नहीं है अगर कश्मीरी खुद मुख्तार बनना चाहते हैं, तो ये एक छोटी बात तो नहीं है जी, इस पे बात करें। फारूक भाई मैं आपको एक सवाल देता हूँ कि वो आप मेरा सामने रखें। जी कि रियासत जम्मू कश्मीर का अलग वजीर आजम है, उसकी सुप्रीम कोर्ट अलग है, उसका परचम अलग है, ये बात मानते हैं ना आप? वो तो अलामती है, लेकिन फिर भी जेर कंट्रोल पाकिस्तानी है। लेकिन उसके ऊपर जो यूनिट चीफ बिठाया हुआ है वजीर आजम को, वो चलाता है हमारे वजीर आजम की जीरो वैल्यू है आपके सामने, जिस तरह फोसी भाई ने कहा ना कि अगर मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि ये कठपुतली है,
ये कठपुतली सर ये तो कठपुतली में आगे की बात कर रहा हूँ इश्तियाक भट्ट साहब, मैं आगे की प्लीज, ये तो कठपुतली है, ये बिल्कुल गलत सेटअप है, ये बिल्कुल एक किसे कहते हैं हुक्मरानी है, ये कब्जा है, ठीक है। यहाँ से आगे जो बात कर रहे हैं इमरान खान जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, उसको आप एज ए कश्मीरी कैसा देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, हल की तरफ कदम है, या आप सारा मलबा पाकिस्तान पे डालते रहेंगे? बताइए जरा। पाकिस्तान की, मैं आपकी बात बता, क्या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या आजाद कश्मीर नामनाद गवर्नमेंट को तस्लीम करती है? सर आप फिर आजाद कश्मीर गवर्नमेंट पे आ गए ना भट्ट साहब। मैं जो वो खुल सकता है इस्लामाबाद में, आप बताएं ना मुझे, आप बताएं। देखिए वो कर सकती है? देखिए आजाद कश्मीर गवर्नमेंट पे आप आगे, मैं अगली जो हल तलब जो मामला है उस पर मैं दोबारा आपको ला रहा हूँ। ठीक है, बस मैं खत्म करूंगा बात आपकी बात जी। ये बताएं जी कि 1 रुपया है जी, अब अगर 12 आपके पास है तो 1 जवानी हमारे पास है, तो किसकी आजादी की बात करते हो? क्या हिंदुस्तान आपको झोली में देगा? नहीं तो में देगा हिंदुस्तान? तो ले सकते हैं आप, जंग करके बताएं मुझे। नहीं तो फिर आप इस पे यानी भट्ट साहब आप देखें फिर जो काबिज फिर कौन हुआ, यानी हम पाकिस्तानी जो हुक्मरान है, देखिए मेरी कंप्लीट कर लेने दे, इस पर आप बात कीजिएगा। हर चीज बता सकता हूँ जी। ये हमारी एक डिबेट है, काबिज दोनों है। हाँ, लेकिन आप थोड़ा बहुत फर्क कर सकते हैं। हाँ ठीक है जी, वहाँ आप जिस तरह लोगों को डराते हैं, वहाँ काफिर हैं आपको मार देंगे, ये बात जो है ना हम नहीं तस्लीम करते, हम नहीं तस्लीम करते। काबिज दोनों हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा दोबारा मैं पूछ रहा हूँ भट्ट साहब, दोबारा पूछ रहा हूँ कि ये दोनों काबिज है, मैं इस पर एग्री करता हूँ। एक काबिज जो है वो कह रहा है कि भाई जब अगर हल करना है तो आइए चाइना का भी नाम लें, चाइना का भी नाम लें, चाइना भी छोड़ने को तैयार हूँ, तो फिर आपके लिए चाइना भी करते हैं। चाइना भी काबिज है। 53 या 58 में गिलगित बल्तिस्तान का स्टेट सब्जेक्ट किसने खत्म किया? भट्ट साहब आप लगता है वो मामला समझ नहीं रहे। देखें मेरी और आपकी लड़ाई होती है, मैं और आप दोनों पड़ोसी हैं, 10 साल से हम लड़ रहे हैं, तो मैं अब पुरानी अगर मैं लड़ाई खत्म करना चाहता हूं तो मैं अब आप पे सन 84 का मुकदमा तो नहीं कर सकता ना। मैं कह रहा हूं कि आइए खत्म करते हैं। जी फारूक भाई ठीक है, आपकी बात में समझ गया। जी, आज की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जी आज की स्टैब्लिशमेंट जी, क्या नाम नाद रियासत कश्मीर को तस्लीम करती है? सर नाम नेहाद क्या, वो अख्तियार दे रही है कि भाई आप अपनी एक रियासत बना लें। तो आपने सिर्फ ये सुना है ना, आपने वापस पे आके वजीर आजम साहब की जो जहाँ से ये जारी होता है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ नाम किसने कहा है? वहाँ इनकी वही है कुछ थोड़ी बहुत इनकी खान साहब की, तो यार हमने तुमको इसीलिए भेजा था कि उनको जाके आजादी दो, हम नहीं देना चाहते। ये अंदर की बात भी समझा करो ना फारूक भाई, करते नहीं। भट्ट साहब आप थोड़ा इंसाफ करें इस मामले में। आप जाहिर है आप एज ए कश्मीरी हम आपके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन कभी आपने इंडिया या आप हों या हमारे दूसरे इस किस्म के आपकी सोच रखने वाले जो यहाँ के मकामी रहनुमा हो, मकबूल भट्ट साहब के बेटे हों या महमूद कश्मीरी साहब हों, आप हों, आपने कभी अब 26 जनवरी गुजरा है, इंडिया का योम जमहूरिया, सारे कश्मीर योम सियाह मनाया, आप उस बारे में कोई बात एक जुमला आप देखें 10-10 मिनट कॉल करते हमें, लेकिन आपने कभी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे सर कभी आपने कोई बात नहीं की इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, जहां पर मुजालिम हो रहे हैं, जहां पे 1.5 साल से कर्फ्यू है, आपने कभी बात ही नहीं की। सारी तंजीमों ने जो खुद मुख्तार चाहती है वो उन्होंने भारत के खिलाफ मुजाहरे किए नहीं किए, पाकिस्तान के अंदर भी हुए, भारत के खिलाफ मुजाहरे हुए नहीं हुए, लेकिन आप बात नहीं करते। हमारे यहाँ पे मकामी जो कश्मीरी है वो नहीं बात नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? हम तो 26 जनवरी को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है ना वो हमारा हुआ के ऊपर, ऑन द रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इस मामले में देखें, अब बात जरा लंबी हो जाएगी, इस मामले में देखिए जो आपके ऑप्शन है, आप जहर मैं समझता हूं कश्मीरियों के बहुत सी इसमें आ रहा है, कुछ का नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका एक अपना एक सोच है। आखिरी बात करके मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा आखिरी बात करके यही आखिरी बात करके कि अगर आजादी देना चाहते हो तो टेबल पे बात करो, तो अगर आप तस्लीम ही नहीं करते, आपने चीफ बैठाया हुआ है मरी के अंदर जो ऑर्डर देता है गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर को, तो उसकी क्या वैल्यू है? सुप्रीम कोर्ट को आप मानते नहीं, मैं आपके सामने भट्ट साहब वो तो एक मकबूजा कश्मीर है ना भाई, आप उसकी मिसालें क्या दे रहे हैं? आप भट्ट साहब फिर उसी की मिसालें दे रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं मान रहा हूं कि भाई वो मकबूजा कश्मीर है,
ये आजाद कश्मीर नहीं, ये मकबूजा कश्मीर है। तो इसको आजाद करने के लिए जो ऑप्शन पाकिस्तान दे रहा है, इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप ये जो तो कहते हैं ना तनकीद बराए तनकीद, अब आप घंटे डेढ़ से लगे हुए इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं। करते हैं ना कि वो हमें आजाद करे, पाकिस्तान को हम तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान हमारी बात माने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी बात माने। चलिए मैं इश्तियाक भट्ट साहब, मैं इसमें 2 मिनट बात कर लेता हूँ। मुझसे भाई आप पे बात नहीं आ रही, आपको वो नहीं सुन किया जाता है। फारूक भाई मेरा सवाल है, अगर कोई सही बात करता है तो क्यों कहते हो कि भाई आप इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं? हम दोनों के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन मैंने नहीं सुना भट्ट साहब, मैंने नहीं सुना। आप नेक्स्ट 2-3 दिन आप इंडिया के खिलाफ बात करेंगे, वादा है आपका? मेरा वादा नहीं। आप श्रीनगर की पहलगाम और ये सारी, जरा मुझे उधर की खबरें भी दिया कीजिए ना। आप मुझे थोड़ा उसका भी बताएं कि इंडिया में 1.5 साल हो गया कर्फ्यू, क्या मुश्किलात है वहां पे? देखिए फारूक भाई, उधर की खबरें आपको भी आती हैं, हमें भी आती हैं। हम ये तो नहीं कहते ना, नहीं एक लगता है, देखिए एक तफरीक हो गई ना। देखें आप, देखें भट्ट साहब, जो इंडियन नवाज है, इससे कश्मीर कॉज को मुश्किलात हो रही हैं। मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे हमदर्दी का है। आप देखें ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने मुजाहरा होता है, कश्मीरी। बहुत बहुत शुक्रिया, एज ए पाकिस्तानी हमदर्दी करते हैं। जी हाँ, मैं सवाल रखता हूँ आपके सामने, कोई बंदा जवाब नहीं देता, हम दे रहे हैं। आप देखें 10 मिनट हो गए आपके साथ। 11 फरवरी को पाकिस्तान क्यों नहीं निकलता? 11 फरवरी को पाकिस्तान क्यों नहीं निकलता? आप निकालें सर, आप अपनी रियासत बने, आप हर हम रियासत में निकालते हैं। हम आपको कहते हैं कि आप 5 फरवरी का प्रूफ दें कि 5 फरवरी को क्या हुआ, बस बात खत्म। सर आपके लिए, आपको तो कोई भी दिन अगर मनाए कश्मीर का, 5 जनवरी मनाए, 5 फरवरी मनाए, 5 मार्च मना ले, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे मकसद के लिए निकल रहे। आप फिर पाकिस्तान के अंदर सवार, आप जो है ना, जब पाकिस्तान 14 अगस्त बना था तो आप 16 बना लेना। सर 14 भी मनाए और 16 को भी कोई मना रहा है तो मनाने दें। ये नहीं हो सकता। कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा डे जो है ना, शुदाए कश्मीर है, लेकिन सबसे बड़ा डे जो है ना वो यही है, शेख कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब का। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि वो भट्ट है तो ठीक है, नहीं, वो पूरी इंसानियत। लेकिन थोड़ा सा तंजीम साजी में भट्ट साहब, यही मशवरा आपको, या बल्कि रिक्वेस्ट है तमाम कश्मीरियों से कि आप थोड़ा सा इस मामले में से थोड़ा सा बाला हो के कश्मीर कॉज के लिए सारे यकजा हो जाएं। 5 फरवरी भी मनाएं, 11 भी मनाएं। नहीं, 5 फरवरी तो ड्रामा है, ये तो देखिए आप कश्मीर इशू पे सर, मुमकिन बात है फारूक भाई। अगर आप पाकिस्तानी, आप एंकर, आप पाकिस्तानी हमारा साथ देना चाहते हैं तो 5 को नहीं, कश्मीर का नाम नहीं लेना 5 नहीं। ये फिर ये ऐसे सर 5 भी मनाए, 11 भी मनाए, सारे दिन मनाए, 365 दिन मनाए। ये आप अगर कहें कि आप 5 फरवरी बनाए, आप कहें आप 15 फरवरी बनाए, आप जनवरी, ये नहीं हो सकता सर। आप सारा साल बनाए भट्ट साहब। ना, कश्मीर की तारीख सामने रखते हमें कहें कि हम आपके साथ हैं तो बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह, लेकिन आप सौंपेंगे आपकी एस्टैब्लिशमेंट थोपने नहीं, थोपना कोई भी नहीं चाहेगा। कश्मीर को ऑप्शन है, आप पूरा साल मनाए, कोई 5 मना रहा है, कोई 10 मना रहा है, 11। मैं आपसे एक ही सवाल रखता हूँ मोती भाई, आप सही, आप करें, आप पहले बैठ टीवी पे बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं 5 फरवरी को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था? और सर जी ये बहुत ही माइक्रो चीजें हैं, ये वो कश्मीर का, ये कश्मीर मसला बहुत बड़ा है। ये वही है कि मैंने आपसे रख दिया है कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, गैर ठीक है, इस बात करते हैं, हम आपको शूट करेंगे। लेकिन अगर आप कोई शर्तें रख के बताएं हमारी मदद करना चाहते हैं तो फिर हम वही बात। ये फिर देखें भट्ट साहब, आप लोगों पे एतराज होता है कि आप इंडियन नवाज हैं, आप पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने मुजाहरा करते हैं, आप पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, आप एजेंडा, आप देखें इंडियन चैनल्स पे इंटरव्यू देते हैं, आपके रहनुमा जो हैं इंडियन चैनल्स पे इंटरव्यू देते हैं। भट्ट साहब देखिए कश्मीरी आप पे एतराज करते हैं, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि कश्मीरी आप लोगों पे, ये जो आपकी जो सोच है, ये आप जैसे लोगों पे एतराज करते हैं कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने तो आप भाग के एतराज करते हैं, लेकिन कभी आपने इंडियन जो वहां पे मजालिम और उस पर बात नहीं की। तो ये दूसरी स्टोरी भी आप जरा सुने ना। मैं जा रहा था लेकिन आपकी इस बात से मैं मुतफिक नहीं हूँ। चले अब ये देखिए, मेरी बात नहीं है भट्ट साहब, ये मेरी बात नहीं है, सॉरी, दोबारा में सुने, ये मेरी बात नहीं है, ये दूसरा जो धड़ा है उसकी बात है। देखा ना भट्ट साहब, ये दूसरा जो धड़ा है आपकी कश्मीरी हुई का धड़ा है। देखा ना आपने हिंदुस्तानी सफारतखाने के सामने क्या देखा, दोबारा बोलिए। आप
کہتے ہیں کہ آپ ہندوستانی سفارتخانے کے سامنے نہیں. سر میں نہیں کہتا سر، کشمیری ہی کہتے ہیں بٹ صاحب. ہندوستانی سفارتخانے کے سامنے ہر 11 فروری کو مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور جو دن آتے ہیں. بٹ صاحب ایک تو آپ ہمیں فریق بناتے، ہمیں فریق نہ بنائے، آپ کشمیری ہی کو جواب دے. جو کشمیری جو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کیا وہ واجب القتل اب ہو گئے ہیں؟ نہیں کیا کریں پھر اس کو؟ ان کا بھی احترام کریں نا آپ مسئلہ ہے نا بھائی، ان کا بھی احترام کریں، ان کو بھی کشمیری مانے نا. ہمارا پتہ ہے کیا ہے، جو خود مختار کشمیر والے ہیں ان کا آپ ایجنڈا پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تو اس ریاست کو جو قانونی 84,000 گلگت بلتستان سارا اس کو. سر وہ تو عمران خان ابھی کہہ رہا ہے، وہ اس نے علل اعلان کہہ دیا ہے کہ میں سب کچھ تیار ہوں، کشمیری جو چاہیں کرے. بٹ صاحب آئندہ پروگرام کر لیں گے، میں موسی بھائی کو ٹائم دوں تھوڑا سا کہ وہ اس پر جو بات کرے. کوئی معذرت نہیں، قطعاً کوئی معذرت نہیں، قطعاً کوئی معذرت نہیں. اس پر آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ پہنچنا چاہیے. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ میرا فرض ہے کہ کشمیری ہی کا ایک الگ نقطہ نظر بھی ہے، اس کو بھی آپ کو قدر کرنی چاہیے. اور عمران خان پہ ہم گھنٹہ ڈیڑھ اس پہ تنقید کر رہے تھے، لیکن جو اس نے حل کے لیے کہا ہے. جی عمران خان صاحب نے صحیح کہا ہے، مگر کشمیر کے معاملے کو جو بگاڑا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو ایک عرصے تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائے رکھا گیا، اور اس کے بعد ایک دم مشرف صاحب نے یو ٹرن لیا اور ہزاروں لاکھوں شہداء کی قربانیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اس سے آزاد کشمیر کے اندر جو یہ ری ایکشن آ رہا ہے نا، دیکھیں ہر چیز کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں. ادھر کشمیر میں نعرے لگتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، ادھر کشمیری پرامن رہ رہا تھا، سکون سے پاکستان کے ساتھ رہ رہا تھا. یہ جو جذبات بھڑکے نا حکومت پاکستان کے خلاف یا ریاست کے خلاف، یہ بھڑکے فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے، جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوئے دمبے کھاتے رہے، مگر انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے کاز کے لیے کوئی کام نہیں کیا. کیا کام کیا ہے؟ اور ان کا کشمیر سے تعلق کیا ہے؟ وہ کشمیر کے رقبے کو نہیں جانتے، وہ کشمیر کے اندر زبانوں کو نہیں جانتے، وہ کشمیر کے اندر کرگل اور وادی کے اور جموں کے فرق کو نہیں جانتے، وہ گلگت بلتستان کی تہذیب کو نہیں جانتے. کشمیری چاہیے تھا. تو بہت ساری بہت ساری غلطیاں ہماری طرف سے ہیں جس کی وجہ سے کشمیری باز بزدل ہوئے ہیں. وہ بزدل ہو جائیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور یقیناً کشمیریوں کی آواز یہی ہے کہ اگر کل کشمیر آزاد ہوتا ہے تو وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ پاکستان کے پاس آئے گا. تو ابھی صرف یہ نعرہ لگانے پر کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہندوستان زیادہ ظلم کرتا ہے. تو اس کو دانش مندی کے ساتھ کرنا چاہیے. اور جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے، اگر اس کا واحد حل یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان سے لے کر اور مظفر آباد تک اگر اس کو باقاعدہ جس کو آزادی کہتے ہیں، اگر ویسے آزاد کیا جائے اور اس کا وزیر خارجہ دنیا میں موو کرے، تو مودی صاحب کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی کہ وہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر پہ قبضہ برقرار رکھ سکیں. چونکہ ہماری طرف سے کشمیر کا وزیر خارجہ نہیں جاتا، اس لیے وہ بھی آرٹیکل 370 والا جو معاملہ ہے اس کو ریووک کر کے پنجے گاڑ کے بیٹھ گئے. اگر ہم باقاعدہ آزاد کر کے وزیر خارجہ کو روانہ کریں تو پوری دنیا اقوام عالم کے سامنے کشمیر کا وزیر خارجہ کھڑے ہو کر کہے گا کہ ہاں بھائی میں ہوں آزاد کشمیر کا وزیر خارجہ، آپ ہندوستان والے کشمیر کے اوپر قابض بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے آزاد نہیں کیا، یہ متنازع ہے اور آپ قابض ہیں. وہ صرف اس لیے نہیں کہہ پاتے کہ پاکستانی وزیر خارجہ ہمدردی تو رکھتا ہے مگر کشمیر کا مقدمہ لڑنے خود کھڑا ہو جاتا ہے. اس پہ دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک پورا سیٹ اپ آزاد کشمیریوں کو دے پاکستان سے، اور وہ کہیں نہیں جاتے. اس میں خوف نہ کھائیں کہ کشمیر آزاد ہو کے آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، پانی چلا جائے گا، ریسورسز کہیں نہیں جائے گا. کشمیر کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، کشمیر کے پاس ریسورسز نہیں ہے. کشمیر ادھر کا بھی آ جائے گا اور یہ سارا آ کے پاکستان کے ساتھ بیٹھ جائے گا. ہم مذہب ہیں، دونوں خاندان منقسم ہیں. ان چیزوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو منحرف کشمیری ہو گئے ان کو بھی ذرا رویے میں لچک لانی چاہیے. آپس میں لڑکے کوئی فائدہ نہیں ہے، دانشمندی کے ساتھ آگے بڑھے. مگر جب تک آزاد نہیں ہوتا، وزیر خارجہ آزاد کشمیر کا نہیں چاہتا، کشمیر آزاد نہیں ہوگا. 10 سے جی السلام علیکم. فاروق بھائی میں بات کر دوں شارٹ اینڈ سویٹ چند سیکنڈ میں. کیا بات ہے؟ میں کشمیری، میرے باؤ دادا جو ہیں وہ ملا اسلام آباد سری نگر کے ہیں. ویری گڈ. اچھا، یہ جو ذات کشمیر ہے وہ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر. ذات کشمیر جو ہے نا یہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا. اور دوسرا جو انہیں قبضہ کیا ہوا ہے ہمارے مقبوضہ کشمیر پہ، جموں کشمیر پہ، جموں اور کشمیر پہ، اس کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے. جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ شاہ رگ ہے، بات ختم.
बताएं बताएं भट्ट साहब। आप देखें इश्तियाक भट्ट साहब, अगर आप सुन रहे हैं, ये भी कश्मीरी हैं, श्रीनगर से इनके आबाओ अजदाद हैं। वो कह रहे हैं कि ये हम पाकिस्तान के साथ है, तो ये कश्मीरियों को, सब कश्मीरियों को छोड़ दें, इंडियन को छोड़ दें, पाकिस्तानियों को, ये जो भी तंजीमें हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप इसका हल चाहते हैं तो पहले उस हल तक लाएं। एक फरीक तो आ गया, पाकिस्तान का वजीर आजम कह रहा है कि भाई आप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं हम तैयार हैं। अब दूसरे फरीक को तो थोड़ा सा झंझोड़ें, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा उसको पूछें कि भाई ये क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी बहन, टाइम थोड़ा जल्दी से 1 मिनट में। मेरा बस यही है कि मतलब ये कश्मीर है और डिस्ट्रिक्ट एरिया, ये रियासत नहीं है कि इसको कोई तस्लीम करे ठीक ना करे कि, लेकिन कश्मीरियों का हक है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। बिल्कुल किसी एक बंदे की नफरत की वजह से और तशद्दुद की वजह से, तीन लोगों के तशद्दुद और नफरत की वजह से कश्मीर आजाद नहीं हो रहा। सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इशू टू इशू या जो भी किसी का किसी मामले में जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मुतालिक अगर हम बात करेंगे, सोचेंगे, तो उस पर इजी होता है बंदे को। क्योंकि अगर इमरान खान को हम कह दें कि वो बुरा है तो, और हर मामले में बुरा है, तो इससे इंसाफ नहीं होगा। कुछ चीजें अगर वो ठीक कर रही है गवर्नमेंट जो है, उस पर उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अब वो फैसल वावडा को अगर अब पता चल रहा है कि कौमी असम्बली में भी उनकी वो डबल शहरियत की वजह से कुछ मसला हो रहा है, तो सेनेट का टिकट अगर मिल रहा है तो फिर ये पीटीआई के ऊपर वो स्वाय तनकीद की और कुछ बनता नहीं है। तो इशू टू इशू अगर हम भी तबसरा करें, हम भी अगर इस पे बात करें, या देखने वाले इशू टू इशू देखें, शख्सियत को बाद में रखें, या इशू या तनाजे को पहले देखें, उसके कौन क्या कह रहा है उसको बाद में रखें, तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है, हल्का फुल्का महसूस करता है इंसान। जी मुझे भाई बिल्कुल ऐसे ही है। और बहरहाल अब मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आवाम को होश में आ जाना चाहिए, आवाम को जाग जाना चाहिए, आवाम को अपने दोस्त और दुश्मन की तमीज कर लेनी चाहिए। ये बार बार उन्हीं लोगों को मुंतखब करना, अभी ये उन्हीं लोगों को लेकर आ रहे हैं जिनको सबने मिलके नाअहल किया था, अब खुद जमा हो गए। तो इन सब चीजों को आखिरी कॉल ले लूं अगर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, चले गए। जी जी बोलिए बोलिए, सॉरी सर। यूसुफ रजा गिलानी साहब को खुद ही नाअहल करवाया था ना। अब साथ खड़े हो गए, तो मतलब आवाम को सोचना चाहिए। मैं इसमें नहीं कह रहा वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो तो यही करेंगे। आवाम को देखना चाहिए कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप समझते हैं आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है, आप वोट डालने ना जाए, सन्नाटा हो जाए ना, एक आदमी बाहर ना आए, फिर कैसे कोई धांधली करने वाला कहेगा कि इसके हक में इतने वोट पड़े। जी जी आखिरी कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी बात जरूर करें जी प्लीज। इन्होंने चांस दे दिया वोट की बेटी से, आप ये देखें ना, पिछले दफा इन्होंने बारियां ली तो क्या किया, बेड़ा गर्क किया। अब एक बंदा ऐसा आ गया है, थोड़ा सा चांस दे, ठीक है ना, चांस देना किसी को। तो आप ये देखें, मौलाना फजलुर रहमान को भी मौलाना कहना, मौलाना की तौहीन है हम समझते हैं, ठीक है ना, इसका नाम इब्लीस होना चाहिए एक्चुअली। चले, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया बहन आपका। और मुसीफ भाई, टाइम खत्म हो गया, क्योंकि ये तो ऐसा मसला है 70 साल से इस पर बहस ही हो रही है, लेकिन कोई हल करना चाहे या इस पर कोई अगर पॉजिटिव कदम उठा रहा है तो उसको जरूर उसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए। और जहां जहां हमारा दिमाग जुड़ा है, अगर हम थोड़ा सा उस दिमाग को भी इजी करेंगे और देखेंगे कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, तो फिर आसानी होगी। मसाइल ऐसे ही हल होते हैं मुसी साहब, ऐसे मसाइल अगर मेरा और आपका झगड़ा और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पे अड़ा रहा हूँ, आप अपने पे अड़े रहे, तो ऐसा शिद्दत पसंदी से कुछ नहीं होता, शिद्दत पसंदी से कुछ नहीं होता। नेगोशिएशन करनी होगी, बैठ के टेबल टॉक करनी होगी, चीजों को हल करना होगा, ऐसे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुसीफ भाई कल आप अपना प्रोग्राम लाएंगे द फोकस, मेरी आपकी मुलाकात